Hello students, how are you all? We have completed all the topics of determinant, chapter determinant है ना. Determinant के सभी topics cover कर लिए थे. I hope कि you have done the exercises. Some student asked me the question that if A is given of a matrix of any order, then find the value of A into adjoint A or adjoint A into A. Actually, it is a theorem, and result of this theorem is A into adjoint A is equal to determinant A into I is equal to adjoint A into A. You can verify it. Just take an example. If A is equal to 1 1 1 3 4 3 and 3 3 4, okay, and we have to find out or we have to verify that A into adjoint A is equal to determinant A into I. ठीक है, तो पहले हम LHS की वैल्यू निकालेंगे और फिर हम RHS की वैल्यू निकालेंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वैल्यू ऑफ determinant A. Determinant A is determinant 1 1 1 3 4 3 and 3 3 4. It is equal to 1 into 16 minus 9 minus 3 into 4 minus 3 plus 3 into 3 minus 4. It is equal to 16 minus 9. It is 7 minus 4 minus 3. 1 and minus 3 into 1 is minus 3. Then it is plus and plus 3 into minus 1, that is minus 3. So it is equal to 7 minus 6. It is equal to 1, which is not equal to 0. इसका मतलब ये और ये 0 के बराबर नहीं है. अगर A इनवर्स निकालना है तो आपको ये एक स्टेप लिखना होता है. अगर A इनवर्स भी निकालना चाहते हैं तो ये एक स्टेप आप आगे बढ़ा देते हैं कि इट इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर वी कैन फाइंड आउट द determinant A inverse. Now to find the adjoint A, we have to find out the values of C11, C12. C11 कितना हो जाएगा? C11 ये प्लस में रहेगा क्योंकि 1 की पावर -1 to the power 1 plus 1 minus 1 to the power 1 plus 1, and it will be equal to into 7. It is equal to 7. C12 is equal to minus 1 to the power 1 plus 2 into minus plus C12 plus 3 है ना. So it is equal to minus 3. Minus 3. Now C13 is equal to minus 1 to the power 1 plus 3 into 3 minus 4. It is equal to minus 1 आएगा. minus 1 into plus 1, it is equal to minus 1. Now C21 is equal to minus 1 to the power 2 plus 1 into, इसके लिए निकाल लेना तो ये रो और ये कॉलम. 3 4 12 minus 9. It is equal to minus 3, क्योंकि यहाँ पे आएगा minus 1. 12 minus 3 is minus 3. Okay, then C22 is minus 1 to the power 2 plus 2 into this row and this column.
4 माइनस 3, 4 माइनस 3 इट इज इक्वल टू, ये +1 हो जाएगा, ये भी +1, सो 1 इंटू 1 1. C2 3 इट इज इक्वल टू -1 to the power 2 plus 3 into 3 minus 3 it is equal to 0. Then C31 is equal to -1 to the power 3 plus 1 into 3, ये वाला एलिमेंट होगा तो ये रो, ये कॉलम और ये रो कैंसिल, 3 3 ज़ा 9 माइनस 12, 9 माइनस 12 इट इज इक्वल टू, यहाँ से +1 आएगा और ये -3, so it is equal to -3. Then C32 it is equal to -1 to the power 3 plus 2 into ये एलिमेंट है तो ये रो और ये कॉलम, 3 minus 3 it is equal to 0. Then C33 is equal to -1 to the power 3 plus 3 into 4 minus 3 that is equal to 1. Okay. So matrix of the cofactors. C12, C12. Sorry, it is 1, na? So it is equal to क्या हो गया, 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1 है ना. इनको ऑर्डर में ही निकाले, C11 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3. इससे एलिमेंट्स को रखने में गलती नहीं होगी. नाउ एडजॉइंट A इज इक्वल टू Cij का ट्रांसफॉर्म, इट इज इक्वल टू 7 -1 -1 -3 1 0 and -3 0 1. Now find the value of A into adjoint A, है ना. A की वैल्यू कितनी थी, 1 1 1 3 4 3 3 3 4 इंटू एडजॉइंट A कितना आया है, 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1. पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो मल्टीप्लिकेशन हमेशा पॉसिबल है. इट इज इक्वल टू, इसे करेंगे तो 1 7 ज़ा 7 -3 -3 देन -3 plus 3 0 then -3 0 plus 3. Second row, first column 7 -4 -3 then -3 plus 4 plus 0. इसमें करेंगे तो -3 plus 0 plus 3. थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 -3 -4 देन -3 plus 3 plus 0 then -3 0 plus 0 plus 4. So it is equal to 7 -3 -6 हो गया तो 1 -3 plus 3 cancel 0. It is again 0. Then 7 -4 -3 7 होता है, 7 - 7 0. It is 4 -3 1. It is equal to 0. Again it is 0. It is 0 and it is 1.
It is the value of A into adjoint A. It is the value of our LHS. Write it as equation 1. Then find the value of determinant A into I. It is equal to determinant A की वैल्यू हमारी 1 आई थी. 1 इंटू आई क्या लेंगे, ऑर्डर 3 का लेंगे क्योंकि A 3 क्रॉस 3 का है. तो ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1. 1 से मल्टीप्लाई करने पर सेम मैट्रिक्स आएगा 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, है ना. तो इट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट A इंटू आई. इक्वेशन नंबर 2. देन फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2, A into adjoint A is equal to determinant A into I. Verified. Okay. So अगर आपको प्रूफ करने को आता है कि ये वेरीफाई कीजिए कि A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू आई होता है, देन यू हैव टू डू ऑल दिस. Otherwise, if simply a matrix is given and you have to find out the value of A into adjoint A, then simply find out the value of determinant A. अगर आपको ये वेरीफाई करने को आता है तब तो आपको LHS और RHS दोनों की वैल्यू निकालनी होगी. लेकिन अगर सिर्फ इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने को दिया है कि मैट्रिक्स की वैल्यू दी है और कहा जा रहा है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A इंटू एडजॉइंट A और एडजॉइंट A इंटू A, तो सिंपली आप क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट A की वैल्यू निकालेंगे और इसके बाद सीधे इस स्टेप पे आ जाएंगे डिटर्मिनेंट A इंटू आई पर. ठीक है, क्योंकि A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू आई होता है. और आप डायरेक्टली आंसर लिख देंगे. ये छोटे क्वेश्चन हैं जो 2 नंबर में पूछे जाते हैं. ठीक है, एक ये कल किसी बच्चे ने मुझसे पूछा, देन आई थॉट कि मैंने ये शायद डिस्कस नहीं किया है. नाउ वी विल ट्राई टू डू सम क्वेश्चंस फ्रॉम मिसलीनियस. मिसलीनियस बहुत इंपॉर्टेंट है डिटर्मिनेंट के चैप्टर का, तो मिसलीनियस हम आज करेंगे. The very first question from miscellaneous that prove that this determinant is independent of theta. Independent of theta means कि जब हम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे इसे सॉल्व करने में, तो वो थीटा उस एक्सप्रेशन में थीटा नहीं होना चाहिए. इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का मतलब यही हुआ, क्योंकि अगर थीटा है तो थीटा की वैल्यू पर वो डिपेंड करेगा, बिकॉज थीटा इज द वेरिएबल. तो अगर इसको इंडिपेंडेंट प्रूव करना है, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट मस्ट बी फ्री फ्रॉम द वैल्यू फ्रॉम द थीटा, है ना. करके इसको सिंपली, ये छोटे क्वेश्चन से जो 2 नंबर्स में आते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं. डिटर्मिनेंट इज गिवन दैट x साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस x प्लस 1 cos theta 1x. So it is equal to x into minus x into x minus x square minus 1 minus sin theta into minus x sin theta minus cos theta plus cos theta into माइनस साइन थीटा और ये माइनस माइनस प्लस एक्स कॉस थीटा. इट इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा, है ना. साइन थीटा इंटू साइन थीटा, अगेन माइनस इंटू माइनस प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस इंटू प्लस प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा. ना प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल. इट इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस, यहाँ से एक्स कॉमन ले ले तो ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा.
इट इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, इट इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब. द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज माइनस एक्स क्यूब विच इज free from theta. Therefore, delta is independent of theta. ठीक है, इसके वैल्यू में कहीं भी थीटा नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये फ्री इंडिपेंडेंट है थीटा से. ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है, वो without expanding the determinant prove that a square bc b square ac c square ab is equal to 1a square a cube 1b square b cube 1c square c cube. बच्चों इसे करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं. मैं जो यहाँ तरीका लगाऊंगी या जो जिस मेथड से या जो ऑपरेशंस लगा के, जरूरी नहीं है कि आप भी वही ऑपरेशंस लगाएं. एक डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि हर स्टेप अपने पहले वाले पिछले वाले स्टेप से जस्टिफाई होना चाहिए. ठीक है, अगर आपका स्टेप ही गलत होगा, मतलब अगर आप जिस स्टेप पे आप सॉल्व कर रहे हैं उसके पहले वाले स्टेप से वो रिलेट नहीं होगा लॉजिकली, तो वो गलत होगा. अदरवाइज यू आर फ्री टू अप्लाई एनी ऑपरेशन. सो थर्ड क्वेश्चन इज इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट. फोर्थ क्वेश्चन करते हैं कि इफ ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स एंड डिटर्मिनेंट की वैल्यू दी गई है b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए इज इक्वल टू 0. ये दिया हुआ है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल है. देन शो दैट आइदर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी. हम ये क्वेश्चन करेंगे. ठीक है, और ये दिया हुआ है कि a b एंड c आर real numbers. Question number 4 of your miscellaneous. ABC belongs to R and delta is equal to B plus C, C plus A plus B, C plus A plus B, B plus C, A plus B, B plus C and C plus A. It is equal to 0. है ना. तो सबसे पहला जो दिख रहा है तरीका वो क्या है कि इसको हम एक्सपेंड करें, है ना, और एक्सपेंड करके हम ये टर्म जो हमें प्रूव करने हैं कि आइदर A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0 और A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C. ठीक है, तो एक्सपेंड करने के लिए यहाँ पे अगर हम सारे कॉलम्स को जोड़ दें तो आप देखो कि हर एक रो में 2 बार C है, 2 बार A है और 2 बार B है, तो हमें कॉमन मिल सकता है. मीन्स कि इफ वी रिप्लेस C1 फ्रॉम बाय C1 प्लस C2 प्लस C3, तो इट विल बी इक्वल, इट इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो 2A प्लस 2B प्लस 2C, यानी अगर 2 कॉमन ले ले हम तो ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C, है ना. ये कुछ आ रहा है, अपना पहला टर्म मिल रहा है A प्लस B प्लस C, है ना. यहाँ पर भी वही होगा 2A 2B 2C, यानी 2 इंटू A प्लस B प्लस C एंड अगेन 2 इंटू A प्लस B प्लस C. कॉलम 2 और 3 में हमने कुछ नहीं किया तो ये ऐसे ही रहेगा, C प्लस A प्लस B, B प्लस C, देन A प्लस B, B प्लस C, C प्लस A इज इक्वल टू 0. नाउ टेक कॉमन 2 इंटू A प्लस B प्लस C, 2 इंटू A प्लस B प्लस C कॉमन हो गया, तो क्या बचा 1 1 1, C प्लस A प्लस B, B प्लस C, A प्लस B, B प्लस C एंड C प्लस A इज इक्वल टू 0. जब ये आइडेंटिकल आ गया तो इसके बाद तो एकदम आसान हो जाता है. आप किसी भी 2 रो को लेकर
क्या कहते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको पहली वाली कॉलम में 2 जीरोज आराम से मिल जाएंगे. रिप्लेस R1 बाय R1 माइनस R2 एंड रिप्लेस R2 बाय R2 माइनस R3, है ना. ऐसे एक्सपेंड करते हैं हम. तो 2 इंटू A प्लस B प्लस C, और इसको करेंगे तो R1 को R1 माइनस R2 करेंगे तो 1 माइनस 1 0. C प्लस A माइनस B, तो प्लस A माइनस A कट जाएगा, क्या बचेगा C माइनस B. और इसको करेंगे तो प्लस माइनस B कट जाएगा, A माइनस C. देन R2 को R2 माइनस R3 करेंगे तो 1 माइनस 1 0. A प्लस B माइनस B माइनस C, प्लस माइनस B कट जाएगा, A माइनस C, और ये आ जाएगा B माइनस A. थर्ड रो को कुछ नहीं किया है तो 1 B प्लस C प्लस A. इट इज इक्वल टू 0. नाउ एक्सपेंड अलॉन्ग C1. तो 2 इंटू A प्लस B प्लस C इंटू, अब इन दोनों को तो लिखना बेकार है क्योंकि ये तो 0 ही हो जाएंगे. और कॉलम खुलता कैसे है, पहला वाला प्लस माइनस प्लस. सो 1 इंटू दिस कॉलम एंड दिस रो कैंसल्ड. ये हो गया C माइनस B इंटू B माइनस A माइनस A माइनस C का स्क्वायर इज इक्वल टू 0. इट इज इक्वल टू 2 इंटू A प्लस B प्लस C इंटू, यहाँ पे इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, इट इज इक्वल टू BC माइनस AC माइनस B स्क्वायर माइनस माइनस प्लस AB, और माइनस में था A माइनस C का होल स्क्वायर, तो ये माइनस A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर प्लस 2AC, है ना. ये सिर्फ हमने क्या किया है कि ब्रैकेट को ओपन कर दिया है. सो इट इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C टू A प्लस B प्लस C इंटू, यहाँ से माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, देन प्लस 2AC प्लस BC माइनस AC प्लस AB. Yes, all the terms are there. Okay. Now take minus as common and multiply this bracket by 2. माइनस कॉमन ले लेते हैं, उसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो माइनस इंटू A प्लस B प्लस C. जब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये जितने माइनस वाले टर्म है ये सब प्लस में हो जाएंगे, और जो प्लस वाले टर्म है वो सब माइनस में हो जाएंगे ना. तो इट विल बी 2A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर. ये AB प्लस में था माइनस 2AB, ये BC जो था ये प्लस में था माइनस 2BC, और ये प्लस 2AC में से माइनस AC हो गया तो बचा प्लस AC ना, तो वो भी हो जाएगा माइनस 2AC. ठीक है, माइनस 2AC. So it implies that is equal to 0. Is equal to 0. It implies minus
ए प्लस बी प्लस सी इंटू, अब 2a² है ना, 2a² 2b², तो अगर एक a² और एक b² ले ले -2ab के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे ही लेट मी डू इट इन डिटेल, है ना, अदरवाइज यू विल कंफ्यूज। देखो ये 2a² है, एक a² ले लिया, यहाँ 2b² में से एक b² ले लिया और -2ab को ले लिया। अब यहाँ से एक a बचा है तो प्लस एक a² ले लिया जो बचा हुआ था, यहाँ से एक c² ले लिया और -2ac, ठीक है। अब एक b² एक c² बचा है तो प्लस b² प्लस c² -2bc, है ना, इज इक्वल टू 0। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। a² दो a², दो b² और दो c²। इट इम्प्लाइज -a प्लस बी प्लस सी इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो अब अगर दो नंबर्स का, ये रियल नंबर्स हैं, तो रियल नंबर्स का सम हो या डिफरेंस वो हमेशा रियल होता है। तो अगर ये ब्रैकेट भी इसका मतलब रियल नंबर होगा, इट इज अ रियल नंबर एंड दिस ब्रैकेट इज ऑल्सो रियल नंबर, है ना। तो दो रियल नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0 कब होता है, आइदर एनी वन ऑफ द नंबर इज 0 और बोथ द नंबर इज 0। तो इट इज पॉसिबल आइदर a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, या तो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 है। ये हमारी पहली कंडीशन थी। और क्या होगा, a माइनस b का स्क्वायर प्लस a माइनस c का स्क्वायर प्लस b माइनस c का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। तो अगर तीन रियल नंबर्स का सम इक्वल आ रहा है, इसका मतलब all the three numbers must be equal to 0 if sum of three numbers, है ना, sum of three numbers is 0, it implies each sum of the square of, क्योंकि a माइनस बी का स्क्वायर है तो ये नेगेटिव हो नहीं सकता, हमेशा पॉजिटिव होगा, ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा, ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा। तो तीन पॉजिटिव नंबर्स का सम अगर 0 है, इसका मतलब ईच नंबर मस्ट बी इक्वल टू 0। बात समझ आई। अगर यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता ना, तो हम इस स्टेटमेंट को नहीं लिख सकते थे, क्योंकि मे बी कि प्लस माइनस होके ये 0 हो रहा हो, हर एक टर्म 0 हो, ऐसा जरूरी नहीं है। बट इट इज स्क्वायर ऑफ द नंबर्स ना, स्क्वायर ऑफ द नंबर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। a माइनस बी स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, a माइनस सी का स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। Similarly, b minus c square is always greater than equal to 0. So, if all the numbers are positive and their sum is equal to 0, it means each number must be equal to 0. So, therefore, a minus b equal to 0, it implies a equal to b. A minus c is equal to 0, it implies a is equal to c. And b minus c equal to 0, it implies b minus b is equal to c. A equal to b, b equal to c. So therefore a is equal to b is equal to c, है ना। तो it implies either a plus b plus c is equal to 0 or a equal to b equal to c. True. आई होप कि आपको समझ में आया होगा, है ना। गो थ्रू द वीडियो अगेन, है।
here it is. I think this question I have sent you in my last PDF, that A prove that this determinant's value is equal to 4a square b square c square, है ना. इसमें से पहले एक बार कॉलम में से ए बी सी कॉमन लेंगे और फिर रोज में से ए बी सी कॉमन लेंगे और इस तरह से ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का टर्म मिल जाएगा और फिर आप किसी एक रो या कॉलम के दो एलिमेंट्स को जीरो करके एक्सपेंड करेंगे तो वैल्यू 4 आपको मिल जाएगी. इट इज सिंपल. 7th is if A inverse is given, B is given, find AB inverse. AB inverse is equal to B inverse A inverse, B inverse into A inverse. AB inverse is equal to, so A inverse is already given, you just find out the value of B inverse. ठीक है, B inverse की वैल्यू निकाल लीजिए. B inverse is equal to adjoint B upon determinant B. ठीक है, A इनवर्स दिया हुआ है, B इनवर्स आप निकाल लीजिए और B इनवर्स से निकालने के बाद B इनवर्स A इनवर्स की वैल्यू निकाल दीजिए. इनवर्स ऑफ एडजॉइंट A इज इक्वल टू adjoint A inverse, adjoint of A inverse. The value of matrix is given. You can simply find out the value of LHS and find out the value of RHS separately. Okay. Then let me know if you have difficulty in any question from miscellaneous. अगर miscellaneous के किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर क्वेरी सेशन में पूछ लीजिएगा. I will solve it for you. But do all the questions of miscellaneous also. ऐसा नहीं है कि miscellaneous आपको solve नहीं करना है. Prepare a proper notes, proper copy बनाइए NCERT की भी और आपके साइड बुक की भी, जो आपकी प्रैक्टिस कॉपी है उसे भी. ठीक है. सो टिल देन कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. होपफुली इन माय नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर दैट इज continuity and differentiability. I have seen that video that 30% of your course has been deducted, कम कर दिया गया है 30% आपका कोर्स. बट right now I'm not quite sure that which chapters are there in, but इसलिए हम अभी तो लाइन से ही पढ़ते चलेंगे. If we found any type of notification from the board, we will inform you. Till then, keep on practicing. Goodbye.